friends. How are you? I hope you all are quite well. Welcome to the world of English once again. This is your friend Ramesh. Well, in the last class, my dear friends, we were discussing the special features of THE, the rules of using THE. We have gone up to 17 points. Let's start the discussion, the 18th point. I will discuss this point. THE is used before the names and before the historical events. जो historical events हैं, जो इतिहास सम्मत घटनाएं हैं, उनके पहले आप THE का यूज करते हो. जैसे if you talk about the wars, revolutions, freedom movements, etc. Like the Battle of Panipat, the French Revolution, the Quit India movement, etc. मैंने हर तरह की बात कर ली आपसे. बैटल की बात हो गई, रिवॉल्यूशन की बात हो गई, मूवमेंट्स की बात हो गई. तो when we talk about these, you can say wars, movements, revolutions, etc. of the history, you use THE before it. The next point is THE is used before the big posts. जैसे आप पोस्ट के नाम लेते हो, आपने कहा द प्राइम मिनिस्टर या द PM, द चीफ मिनिस्टर, द CM, द प्रेसिडेंट, like this. Like this friends. जब कभी भी आप इनकी बात कर रहे हो, the prime minister, the chief minister, the president, the chairman, these type of things, the big posts, you always use THE before. Now the next point is THE is used with the body parts. Whenever you take the name of the body parts, whenever you take the name of any body part, you use THE before it. The head, the chest, the thumb, anything, whatever you want to be. They say he hit her in the head. Means whenever you are making a sentence where the body parts are coming, you will use THE before it. कभी भी आप body parts की बात कर रहे हैं तो वहां आप THE का प्रयोग करेंगे. This was the point number 20. Now let's move towards the point number 21. THE is used before adjective plus proper noun. देखो commonly तुम एडजेक्टिव के साथ कॉमन नाउन तो यूज करते हो, उसकी कोई दिक्कत नहीं होती. लेकिन अगर तुम इज ए गुड मैन, ग्रेट पर्सन, एक्सेट्रा, ब्यूटीफुल गर्ल, एक्सेट्रा, लेकिन अगर एडजेक्टिव के साथ कोई प्रॉपर नाउन यूज हो, व्हेनेवर यू आर यूजिंग अ प्रॉपर नाउन विद एन एडजेक्टिव, तो उसके पहले हमको THE का यूज करना होता है. जैसे मान लो आपने कहा the great Gandhi, the immortal Shakespeare, the great Gandhi, the immortal Shakespeare, the beautiful Mona Lisa, etc. इस तरह के यूज. जब कभी आप ऐसी बात करोगे द ग्रेट गांधी, आप देखो गांधी से पहले ग्रेट, बिफोर शेक्सपियर इमॉर्टल, बिफोर मोनालिसा ब्यूटीफुल. व्हेन यू आर यूजिंग प्रॉपर नाउन्स विद एडजेक्टिव्स, यू यूज THE बिफोर इट. ये बात यहां याद रखनी है. नेक्स्ट पॉइंट, THE is used before the names of the specific professions. देखो कुछ खास किस्म के प्रोफेशंस हैं, कुछ खास किस्म के वर्ड्स हैं जो याद रखना चाहिए. जैसे जूरी है, उसके पहले भी THE लगता है. द बार, द बेंच, द प्रेस, द पोएट, द ऑथर, लाइक दिस. जब भी इनके नाम हम ले रहे हों तो इनके साथ हम THE का प्रयोग करते हैं कॉमनली, जब भी कभी बात कर रहे होते हैं. ये बात आपको याद रखनी है. फिर देखो THE is used with the industries, industrial groups and families. उद्योगों, औद्योगिक घरानों या उनके औद्योगिक परिवारों का जब हम नाम लेते हैं तो वहां हम
THE का यूज करते हैं। जैसे मान लो आप कहते हो द टाटा स्टील कंपनी, द रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, द सहारा परिवार, लाइक दिस। जब भी कभी इनकी बात करते हैं तो ध्यान रखना चाहिए कि आपने इंडस्ट्रीज की बात की। Whenever you talk about the industries, industrial families, industrial groups, you use THE in this connection, in this condition. This was point number 23. Now let's move towards the point number 24. Okay, friends. The next point, the is used before the names of the workshops, banks, factories, etc. When we talk about any bank, factories, workshops, etc., like the sugar mill, the State Bank of India, workshops like the cultural workshop, like this. जब भी कभी आप वर्कशॉप्स, बैंक्स या फैक्ट्रीज का नाम लोगे तो वहां आप THE का प्रयोग करते हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आओ। THE is used before some adjectives that always give the plural sense. देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे तुमने कहा the rich, the poor, the old। अब यहां पे रिच सारे रिच लोगों की बात कर रहा है, पॉर सारे पॉर लोगों की बात कर रहा है, ओल्ड सारे ओल्ड लोगों की बात कर रहा है। जैसे आप कहते हो we should help the blind। अगर मान लो ऐसे कहोगे we should help the blind, तो यहां the blind means all the blind people। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी धनी आदमी, कोई भी बूढ़ा आदमी, वैसे ही कोई भी अंधा आदमी या अंधे लोग, जितने भी अंधे लोग हैं, गरीबों को, अमीरों को, बूढ़ों को, ब्लाइंड, द ब्लाइंड मीन्स अंधों को, मीन्स whenever the plus adjective comes in this way, it will always give you the plural sense। तब आप वहां THE का यूज करोगे। नेक्स्ट हो, THE is used with the names of the deserts, canals, pass। deserts जैसे आपने the Thar desert, the Sahara desert, canals, the Suez canal, like this। pass दर्रे, जैसे हिमालय में तमाम दर्रे हैं, जैसे आपने कह लिया the Khyber pass, Suez canal, the Sahara desert, the Khyber pass, the Gomal pass, like this। तो आप दर्रों को, रेगिस्तान की, कैनाल्स का आदि की बातें करोगे तो इन सब के साथ भी हम THE का यूज करते हैं। तो ये रहा आपका पॉइंट नंबर 26। Now let's move towards the point number 27। 27 पॉइंट के रूप में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो कुछ नंबर्स जो होते हैं, जैसे इसमें लिखा है THE is used before the ordinal numbers। ऑर्डिनल नंबर्स कब होते हैं? जब तुम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह बोलते हो शब्दों में लिख के। तो जब हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे बोलेंगे तो ये ऑर्डिनल नंबर्स हुए। एंड वी ऑलवेज यूज THE बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स। एक कार्डिनल नंबर्स भी होते हैं 1 2 3 4, उनके पहले THE लगाते, लेकिन ऑर्डिनल नंबर्स के पहले आप THE का यूज करते हो। वी ऑलवेज यूज THE बिफोर द ऑर्डिनल नंबर्स। लेकिन ये ध्यान रखो कि whenever we are using the Roman figures now, we don't use THE before it। we don't use the with Roman figures। मैंने लिखा हुआ है, देख सकते हो आप यहां। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो तुमने कहा जॉर्ज सेकंड, हेनरी फोर्थ, हेनरी सिक्स्थ, एटसेट्रा, लाइक दिस।
we can't use THE with the cardinal numbers. We always use THE before the ordinal numbers, and we don't use the with the Roman figures. ये ध्यान रखिए कि रोमन फिगर्स के पहले भी हम THE का यूज नहीं करते. अब देखो, THE is used before comparative degree, usually an adverb. कभी कभी एक कंपैरेटिव डिग्री में जब हम बात कर रहे होते हैं, जैसे तुम कहोगे द मोर यू गो द मोर यू गेट, तो ये पूरा एक एडवर्बियल फ्रेज के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है, यूजुअली एन एडवर्ब. जैसे देखो, द सूनर द बेटर, द मोर यू वॉक द मोर यू गेट, लाइक दिस. तो यहां पे आप देखते हो सूनर के लिए द लगाया, मोर के पहले द लगाया, तो इसलिए कंपैरेटिव डिग्री के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं. बेटर के पहले द लगाया, इससे मुझे हमें एक एडवर्बियल फ्रेज मिलता है. तो फॉर दिस आल्सो वी यूज THE. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, अभी आपने इन्वेंशंस और डिस्कवरीज के बारे में सुना है. डिस्कवरीज जो पहले से होती हैं इन्हें खोजा जाए, इन्वेंशंस नई चीजें नई तरह से आती हैं. तो आप जब इन्वेंशंस की बात करोगे, whenever you talk about the inventions, you use THE before it. जैसे आप कहते हो द रिवॉल्वर, द रेडियो, तो ये आपके इन्वेंशंस हैं. द ग्रामोफोन, आप इनके लिए THE का यूज करते हो. लेकिन याद रखना, हम टीवी के लिए, टेलीविजन के लिए THE का यूज नहीं करते. They were watching TV. ये द टीवी नहीं हो सकता. टेलीविजन के साथ हम इसका यूज नहीं करते. अब एक ट्रेडिशनल रूल है, हमें इस तरह याद रखना होता है. So whenever you talk about the inventions, if you talk about the inventions, you use THE before them, but not with TV. टेलीविजन के साथ हमें नहीं करते, ये ध्यान रखना. नेक्स्ट रूल, THE is used with the names of the group of islands. जैसे the East Indies, the West Indies. ध्यान रखना, यहां भी ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के लिए हम THE का यूज करते हैं, बट नॉट फॉर द सिंगल आइलैंड. सिंगुलर आइलैंड के लिए नहीं करते. जैसे द जावा नहीं होता, द सुमात्रा नहीं हो सकता. यहां ये THE गलत है. क्यों? क्योंकि ये सिंगुलर आइलैंड्स, सिंगुलर आइलैंड्स, सिंगुलर आइलैंड्स के साथ आप THE का यूज नहीं करते. Whenever we talk about the group of islands, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. अच्छे अच्छे लोगों को चीजें पता नहीं होती. It's very important to put these points into your knowledge, into your concentration. It should always be in your mind. अच्छे इंग्लिश के लिए बहुत जरूरी है ये सब पॉइंट्स ध्यान रखना. तो whenever we talk about the group of islands, the East Indies, the West Indies, ये आप इसके लिए इसका इस्तेमाल करोगे THE का. लेकिन जो सिंगुलर आइलैंड्स होते हैं, जैसे जावा लिखा, सुमात्रा लिखा, मलाया, इन सब के लिए जब आप बात करोगे तो इनके लिए आप THE का यूज नहीं करोगे. Now the next point, THE is used before the comparative degree of an adjective if than is not used. अगर मान लो you have to use a comparative degree anywhere, but than is not used there, तो उस सेंटेंस में हम द का यूज करते हैं कंपैरेटिव डिग्री. जैसे he is the wiser of the two, she is the greater of the two. अगर than का यूज नहीं हुआ तो वहां आप देख सकते हैं, यहां हम wiser के पहले THE का यूज कर रहे हैं, और ये इस कंडीशन में आपके सामने आता है. तो आपका पॉइंट नंबर 31 हो गया. Now let's move towards the point number 32. THE is used with the people of the country. किसी भी देश के नागरिक के साथ THE का यूज हम करते हैं कॉमनली. देखो इसमें क्या होता है, यहां मैंने लिखे कुछ, आप देख सकते हैं एक तरह से कुछ सब्जेक्ट्स के नाम है. इंग्लिश एक भाषा है, फ्रेंच भाषा है, ग्रीक भाषा है, जर्मन भाषा है. लेकिन अगर हम इनके पहले THE लगा दें, द इंग्लिश, द फ्रेंच, द ग्रीक, द जर्मन, अब ये सब यहाँ के
निवासी हो गए, सिटीजन्स ऑफ दिस कंट्रीज। हमेशा याद रखिए इसको। जर्मन ऐसे कहेंगे तो जर्मन लैंग्वेज हो गई, लेकिन द जर्मन मीन्स द पीपल ऑफ जर्मन, द इंग्लिश मीन्स द पीपल ऑफ ब्रिटेन, द फ्रेंच मीन्स द पीपल ऑफ फ्रांस। और केवल फ्रेंच की बात करोगे लैंग्वेज हो गई, केवल इंग्लिश की बात करोगे लैंग्वेज हो गई। तो वास्तव में पीपल ऑफ द कंट्री के लिए हम लगाते हैं THE, द इंग्लिश, द फ्रेंच, the English, the French, the Greek, the German, the Russian, the Arab, like this. Now the next point, friends. तो नेक्स्ट पॉइंट में कुछ वर्ड्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। कुछ वेन्यूज लिखे जैसे ऑफिस, स्टेशन, बस स्टॉप, और कुछ इंटरटेनमेंट के व्यूज लिखे हैं। इंटरटेनमेंट के वेन्यूज के लिए, इंटरटेनमेंट के प्लेसेस जैसे सिनेमा, थिएटर, सर्कस या पिक्चर। इन सभी वर्ड्स के साथ हम THE का यूज करते हैं। ऑफिस, थिएटर, सर्कस, सिनेमा, बस स्टॉप, पिक्चर, इनके साथ हम THE का यूज करते हैं। जैसे देखो लिखा है आई एम गोइंग टू द सिनेमा या द थिएटर, जो भी होगा आपको कहना हो ही रीच्ड द स्टेशन, ऐसे कह सकते हैं। लुक एट द पिक्चर, ऐसे कह सकते हैं। ऐसे सारे यूजेस हो सकते हैं जो भी आपके सामने है। He's at the bus stop, he's sitting in the office, like this. So I'm going to the cinema, the theater, he reached the station, look at the picture, like this. So office, whenever you are using these words, please be careful while using these words. These are the common words we use in our everyday life. In our daily life, these words are very important. We use them quite often. अक्सर हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ऑफिस, सिनेमा, थिएटर, सर्कस, स्टेशन, बस स्टॉप, पिक्चर, लाइक दिस। और इन वर्ड्स के साथ हम THE का यूज जरूर करते हैं। Now the next point, कभी कभी किसी एक प्रॉपर नाउन को हम प्लूरल बनाते हैं और उसके पहले हम THE का यूज करते हैं। इससे पूरे फैमिली या पूरे खानदान के बारे में हमें पता लगता है। कभी कभी हम डायनेस्टीज भी दिखाते हैं इस तरह से, जो डायनेस्टीज दिखाते हैं, द मौर्यंस, द गुप्ताज, ये बात है वो भी। तो फिर जैसे मान लेते हैं कहा था शर्मास, इट मीन्स शर्मा फैमिली, द गुप्ताज, द गुप्ता फैमिली। आप कह देते हैं द मौर्यंस, इट मीन्स द मौर्यन डायनेस्टी, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो फ्रेंड्स जब ऐसे यूज करते, मान लिया आपने कह दिया द गुप्ताज आर लिविंग द सिटी टुडे, यानी गुप्ता परिवार आज शहर छोड़ रहा है, तो हम तो गुप्ता फैमिली की जगह तो गुप्ताज कहें, इट्स बेटर इंग्लिश, इट्स नाइस इंग्लिश टू से, जब भी कभी इस तरह की बात करते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, फिर यहां ध्यान दीजिएगा, THE इज यूज्ड विद द नेम्स ऑफ एनी कमिटी, क्लब, फाउंडेशन, ट्रस्ट, फंड, एटसेट्रा। जैसे द रोटरी क्लब, द लॉयंस क्लब, द WHO, the Ford Foundation, the PM Relief Fund, the Rajiv Gandhi Foundation, etc. So whenever we talk about the committee, club, foundation or trust, etc., we use THE. We use THE here. This was the 35th point, my dear friends. Let's move towards the 36th point. Now friends, THE is used with the countries having United, Union, Republic and Kingdom in their names. मतलब ऐसे देश जिन देशों के नाम में यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक, किंगडम आदि वर्ड्स लगे होते हैं। जैसे मान लो आपने कहा द UK, या कहिए द यूनाइटेड किंगडम, द USA, द UK, द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द सोवियत यूनियन, the Republic of Ireland, ये सब वर्ड्स। जब कभी भी आपके सामने इस तरह की कंडीशन दिखाई पड़ती है, आप जब भी कभी ऐसा देखोगे, ये देखो आप
द यूके, द यूएसए, द सोवियत यूनियन, द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, इस तरह के वर्ड्स जब भी कभी हम लिखते हैं, द रिपब्लिक ऑफ चाइना में होता है, तो इनके साथ जहां भी आप यूनाइटेड, यूनियन, रिपब्लिक ये वर्ड्स यूज करते हो, बिफोर द नेम ऑफ दीज कंट्रीज वी यूज THE। अब देखो एक पॉइंट यहां और याद रखना है, देयर आर सम कंट्रीज, कुछ ऐसे देश हैं हैविंग द प्लूरल नेम्स, जिनके प्लूरल नेम है, जैसे द नीदरलैंड्स, द फिलीपींस मैंने लिखा हुआ है। तो इफ अ कंट्री हैज द प्लूरल नेम देन आल्सो यू हैव टू यूज THE बिफोर इट। अगर किसी कंट्री का नाम प्लूरल है तो उसके पहले भी आप THE का यूज करते हो। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे ध्यान रखना है। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, सी दिस पॉइंट, when a singular common noun shows the whole class, we use the there। इसे देखो, तुमने कहा the cow is the useful animal। अगर तुम the cow कह रहे हो, it means here the cow is showing its whole class, सभी गायों के बारे में, गाय जाति के बारे में बात हो रही है। इस सेंटेंस के साथ बड़ी उलझन है। जैसे कहा जाए the dog is a faithful animal, the cow is a useful animal। This sentence can be written in 3 ways। अगर तुम इसको ऐसे लिखो, A cow is a useful animal, तो भी सही। और अगर तुम ये कहो cows are useful animals, तो भी सही। डाउट नहीं होना चाहिए। असल में ये तीनों तरह से सेंटेंस देखने को मिलते हैं इंग्लिश में। जब आप यूजेस देखते हो तो यूजेस में आपको ये तीनों तरह के सेंटेंस देखने को मिलते हैं। इसलिए जब कभी भी हम इनका यूज कर रहे होते हैं कहीं, तो ये बात ध्यान रखिए, इफ यू गेट अ यूज लाइक द काउ देन इट्स आल्सो करेक्ट, अ काउ इज आल्सो करेक्ट, एंड काउज आर यूजफुल एनिमल्स, तो भी सही है। तो all 3 uses are showing the class here. A cow is also showing the class, the cow also, and cows also. But the cow is a better use. ये तीनों यूज यहां हो सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैन या मैनकाइंड के साथ, मैन या मैनकाइंड के साथ, इनके साथ हम THE का यूज नहीं करते। जैसे द मैन नहीं कहेंगे। अगर आपने कहा मैन इज अ सोशल एनिमल, तो आप द मैन नहीं कह सकते। वी डोंट यूज THE विथ मैन और मैनकाइंड। जनरली मैन ये सोशल एनिमल इज करेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पॉइंट को भी आपको यहां पर ध्यान रखना होता है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो फ्रेंड्स, विद दिस पॉइंट वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास टुडे। आई विल टॉक about the rest of the points of THE, and then some other points, other things also. Some very special things are left in the next class. Till then, it's goodbye from here. Thank you so much.